Good morning, students. Now in today's lecture we will discuss the properties of stationary wave. देखिए लास्ट लेक्चर हमने स्टेशनरी वेव्स, हाउ स्टेशनरी वेव्स आर प्रोड्यूस्ड एंड उसके लिए एक डेरिवेटिव हमने ऑब्टेन किया था, इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव इन डिफरेंट फॉर्म्स. तो आज के लेक्चर में हम प्रॉपर्टी डिस्कस करने वाले हैं. देखिए फिर से एक बार, व्हाट इज स्टेशनरी वेव एंड हाउ इट इज़ प्रोड्यूस्ड. स्टेशनरी वेव, देखिए व्हेन two identical waves traveling along the same path in opposite directions interfere with each other, resultant wave is called stationary wave. मतलब इसमें दो आइडेंटिकल वेव्स होते हैं. देखिए सपोज दिस इज द कंटिन्यूस लाइन, ओके, दिस इज वन वेव. लेट अ ट्रांसवर्स वेव इज फॉर्म ऑन अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग. लेट दिस कंटिन्यूस वेव represents the incident wave. Let this is incident wave. There is one support, and from this rigid support this wave get reflected, and reflected wave represented by dotted line. That this is reflected wave. Reflected wave. As the same wave is reflected back from the rigid support, okay, in exactly opposite direction. So incident wave, reflected wave having same amplitude, same frequency, okay, they interfere each other along the same path and produces a resultant wave that is known as stationary wave. So in this way stationary wave is formed between these two rigid supports in the form of loops. So these are known as loops of the stationary waves, okay. और इसके एक्सप्रेशंस हमने लास्ट लेक्चर डिस्कस किए. नो, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगी स्टेशनरी वेव की. नंबर वन, स्टेशनरी वेव्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ टू आइडेंटिकल वेव्स, आइदर ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ट्रैवलिंग थ्रू अ मीडियम अलोंग द सेम पाथ बट इन अपोजिट डायरेक्शन. मतलब फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज नथिंग बट द मीनिंग ऑफ डेफिनेशन ऑफ द स्टेशनरी वेव. जहाँ पर दो आइडेंटिकल वेव्स होते हैं, दे मे बी ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल. ट्रांसवर्स वेव, जैसे यहाँ पर डायग्राम में ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव इज शोन. सपोज लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का एग्जांपल क्या होता है, साउंड वेव, है ना. सपोज देयर इज अ पाइप एंड व्हेन वाइब्रेशंस ऑफ एयर कॉलम टेक्स प्लेस इन द पाइप, देन फ्रॉम अदर एंड द वेव गेट रिफ्लेक्टेड. सो इंसिडेंट sound wave, reflected sound wave overlap each other and forms a longitudinal stationary wave. When the waves are produced along the stretched string, these are transverse wave. तो यहाँ पर transverse stationary wave produces होते हैं. And in a column there is vibration of air column, that is sound waves. तो वहाँ पर longitudinal stationary waves produce होते हैं स्टूडेंट्स, ओके. तो पाइप के अंदर longitudinal stationary waves, तो हमें दो कंडीशंस यहाँ पर डिस्कस करने. वाइब्रेशंस ऑफ एयर कॉलम इन अ पाइप क्लोज एट वन एंड एंड ओपन एट बोथ एंड्स. तो ये पॉइंट हम नेक्स्ट आर्टिकल में देखने वाले हैं स्टूडेंट. तो ये फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक मतलब मीनिंग ऑफ डेफिनेशन. सेकंड देखिए, व्हेन अ ट्रांसवर्स वेव स्टेशनरी वेव इज प्रोड्यूस्ड ऑन अ स्ट्रिंग, द पॉइंट्स विच डू नॉट मूव आर कॉल्ड नोड्स, and the points which oscillates with largest amplitude, that is maximum amplitude, are called antinodes. देखिए यहाँ पर this is incident transverse wave get reflected, okay, both interfere each other and produces a stationary wave. There are certain points, देखिए at the rigid supports हमेशा nodes produce होता है. nodes मतलब क्या, जहाँ पर particle of the medium does not oscillate. These are the nodes. 1 2 3 4 5 nodes are shown in the diagram. So nodes पर जो points होते हैं मीडियम के, they do not vibrate at all. They do not vibrate, okay. And the particles which vibrate with maximum amplitude, see these points, okay. In this loop there is one particle which oscillates with maximum amplitude. So these points are known as antinodes. These are known as antinodes. तो इस डायग्राम के अंदर 5 नोड्स और 4 एंटीनोड्स और 4 लूप्स यहाँ पर प्रोड्यूस हुए. तो इसका मीनिंग क्लियर हो गया ना आपको.
the points of the medium where particles do not vibrate are called as nodes, and the points at which the particle of medium vibrate with maximum amplitude are called antinodes. So in this way, when stationary wave is produced, alternate antinode node, antinode node, antinode nodes are formed in the medium. Okay, then points between nodes and antinodes vibrate with amplitudes between 0 to a. ए का मतलब यहाँ पर एम्पलीट्यूड. ओके, जीरो एम्पलीट्यूड कहाँ पर होगा पार्टिकल्स का? एट द नोड्स. यस, एंड मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कहाँ पर होगा? एट द एंटीनोड्स. एट द एंटीनोड्स. तो सारे पार्टिकल्स यहाँ पर ऑसिलेट होते हैं एक्सेप्ट द पॉइंट्स एट द नोड्स. ओके, विथ डिफरेंट एम्पलीट्यूड्स. देखिए यहाँ पर नोड्स पर एम्पलीट्यूड कम से कम होता है, मतलब जीरो होता है. देन पार्टिकल का एम्पलीट्यूड यहाँ पर इंक्रीजिंग होगा. ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए इस पॉइंट पर नोड है तो पार्टिकल ऑफ द मीडियम डज नॉट वाइब्रेट. नो, एडजेसेंट पार्टिकल वाइब्रेट, यहाँ पर वाइब्रेट हो जाते. देखिए इनके एम्पलीट्यूड्स की वैल्यू कैसे है यहाँ पर? इट इज़ इंक्रीजिंग, और ये पार्टिकल सबसे ज़्यादा एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट होगा. राइट, सो एम्पलीट्यूड्स ऑफ डिफरेंट पार्टिकल्स आर डिफरेंट. यहाँ पर एम्पलीट्यूड ऑफ डिफरेंट पार्टिकल्स आर डिफरेंट. ओके, वाइब्रेटिंग बिटवीन जीरो एम्पलीट्यूड टू मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, दैट इज ए. नाउ द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव नोड्स इज लैम्बडा बाय 2. देखिए नोड यहाँ पर एक नोड और ये दूसरा नोड है, तो इनके बीच डिस्टेंस कितना होता है स्टूडेंट? इट इज़ लैम्बडा बाय 2. एनालिटिकल ट्रीटमेंट में हमने देखा है. तो लास्ट लेक्चर हमने ये पॉइंट डिस्कस किया स्टूडेंट कि डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स इज लैम्बडा बाय 2. सिमिलरली द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव और कॉन्जिक्यूटिव एंटीनोड्स इज आल्सो लैम्बडा बाय 2. मतलब यहाँ पर देखिए एंटीनोड एंटीनोड, इनके बीच भी डिस्टेंस कितना होता है? लैम्बडा बाय 2 ही होता है. राइट, नोड्स एंड एंटीनोड्स आर प्रोड्यूस अल्टरनेटली इन द स्टेशनरी वेव. देखिए स्टेशनरी वेव मतलब अगर दो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड, मतलब टू आइडेंटिकल वेव्स आर मूविंग अलॉन्ग द सेम पाथ इन अपोजिट डायरेक्शन, देन इट इंटरफेयर ईच अदर एंड फॉर्म्स अ स्टेशनरी वेव. So that medium divided alternately into nodes, antinode, nodes, antinodes. The distance between node and adjacent antinode is equal to lambda by 4. देखिए एंटीनोड एंटीनोड के बीच डिस्टेंस कितना है? लैम्बडा बाय 2. ओके, नोड नोड के बीच भी डिस्टेंस कितना होता है? लैम्बडा बाय 2. नाउ वन नोड एंड वन एंटीनोड, इन दोनों के बीच डिस्टेंस कितना होगा? हाफ ऑफ द लैम्बडा बाय 2. हाफ ऑफ द लैम्बडा बाय 2 मतलब देखिए 1/2 इंटू लैम्बडा बाय 2, सो दिस गिव्स लैम्बडा बाय 4. सो डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एडजेसेंट एंटीनोड या फिर डिस्टेंस बिटवीन एंटीनोड एंड एडजेसेंट नोड इज ऑलवेज इक्वल टू लैम्बडा बाय 4 होता है स्टूडेंट. ओके, द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन वेरीज पीरियोडिकली इन स्पेस. ऑल पॉइंट्स एक्सेप्ट नोड्स वाइब्रेट विथ सेम फ्रीक्वेंसी. देखिए यहाँ पर एक्सेप्ट नोड्स, नोड्स पर पॉइंट्स जो होते हैं मीडियम के, दे डू नॉट वाइब्रेट एट ऑल. ओके, देयर एम्पलीट्यूड इज जीरो. लेकिन बाकी के पार्टिकल्स यहाँ पर ऑसिलेट हो जाते हैं. देखिए ये पार्टिकल यहाँ पर ऑसिलेट होता है, ये भी ऑसिलेट होता है, लेकिन हर एक पार्टिकल यहाँ पर ऑसिलेट होगा एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल पार्टिकल्स इज सेम. दैट मीन्स पीरियोडिक टाइम इज ऑल्सो सेम. मतलब देखिए ये पार्टिकल अगर ऑसिलेट होता है यहाँ पर, ओके, फॉर एग्जांपल 2 सेकंड के अंदर, तो जो पार्टिकल एंटीनोड पर होता है वो भी यहाँ पर एक ऑसिलेशन 2 सेकंड में ही कंप्लीट करता है. मतलब ऑल पार्टिकल्स विच आर नाउ एट द मीन पोजिशन, ओके, रीचेस साइमल्टेनियसली एट दिस क्रस्ट. ओके, then it return back towards the mean position in the same time and reaches all particle at the trough in the same time. So oscillation of all particles are same. That means periodic time is same. Periodic time and frequency of all the particles are same, but amplitudes are different. So amplitude of vibration varies periodically. In space, all points except nodes vibrate with the same frequency and period. All particles in the one loop vibrate in the same phase
of oscillation which reverses for adjacent loop. ओके, इसका मीनिंग क्या होता है देखिए कि सपोज दिस इज फर्स्ट लूप, ऑल पार्टिकल्स आर शोइंग दैट आर मूविंग वर्टिकली अपवर्ड. तो यहाँ पर क्या होगा, इन एडजेसेंट लूप ऑल द पार्टिकल्स आर मूविंग डाउनवर्ड डायरेक्शन. देखिए इस तरह से ये पार्टिकल्स ऑसिलेट होंगे इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. इसका एम्पलीट्यूड सबसे ज़्यादा होगा, एम्पलीट्यूड डिक्रीजेस. ओके, ठीक है, एम्पलीट्यूड जीरो कहाँ पर होता है, नोड पर. एम्पलीट्यूड इंक्रीजेस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम नोड टू एंटी नोड एंड फ्रॉम एंटी नोड टू नोड एम्पलीट्यूड डिक्रीजिंग होता है. ओके, अब इसका मीनिंग क्या होता है देखिए कि एक लूप में ऑल पार्टिकल्स क्या होंगे, मूविंग अपवर्ड. तो सेकंड लूप में उसका फेस क्या होता है, मूविंग डाउनवर्ड. तो देखिए इस तरह से पार्टिकल्स यहाँ पर मूविंग होते हैं, ये अपवर्ड होंगे तो ये डाउनवर्ड, इस तरह से, तो अपोजिट डायरेक्शन में होंगे. दैट मीन्स देखिए ऑल पार्टिकल्स इन वन लूप वाइब्रेट इन द सेम फेज. यहाँ पर एक ही लूप में जो सारे पार्टिकल्स होंगे, ऑल पार्टिकल्स आर मूविंग इन द सेम फेज. ओके, एंड विच रिवर्सेस फॉर एडजेसेंट लूप. मतलब यहाँ पर पार्टिकल अगर वर्टिकली अपवर्ड मूव होते हैं तो सेकंड लूप में क्या होंगे, फिर डाउनवर्ड होंगे. अगर फर्स्ट लूप के पार्टिकल अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव होंगे तो सेकंड एडजेसेंट लूप में के पार्टिकल्स क्या होंगे, वर्टिकली अपवर्ड, इस तरह से अपोजिट डायरेक्शन में मूव होते हैं. ये इसका मीनिंग होता है स्टूडेंट. दो ऑल पार्टिकल्स एक्सेप्ट एट द नोड्स possess एनर्जी, देयर इज नो प्रोपोगेशन ऑफ एनर्जी. देखिए ऑल पार्टिकल्स यहाँ पर वाइब्रेट हो जाते हैं, लेकिन कौन से पार्टिकल्स वाइब्रेट नहीं होंगे, विच आर एट द नोड्स. All particles vibrate, that means it possess energy, but no net transfer of energy takes place. So there is no propagation of energy. Energy का propagation यहाँ पर नहीं होता है. Although every particle possess energy on account of its vibration, but energy transfer यहाँ पर नहीं होता है. So there is no propagation of energy. Okay. Okay student. Next characteristic देखिए. The stationary wave localized where it is, its velocity is zero, so also known as standing wave. देखिए stationary wave मतलब particles vibrating होते हैं except the particles at the nodes. Okay, they possess energy also, but there is no net transfer of energy in forward direction or backward direction. The stationary wave stands where it is, localized where it is, so it is also known as standing wave. So stationary wave is also known as standing wave. So these are some characteristics of stationary waves. Okay, मतलब इसमें stationary waves and progressive wave दोनों के बीच डिफरेंस क्या होगा स्टूडेंट. देखिए प्रोग्रेसिव मतलब जहाँ पर वेव इज कंटिन्यूसली मूविंग फॉरवर्ड डायरेक्शन, दैट इट आल्सो ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट ऑफ द मीडियम. लेकिन स्टेशनरी वेव के अंदर देखिए पार्टिकल्स possess एनर्जी बट देर इज़ नो प्रोपोगेशन ऑफ एनर्जी. इसका मतलब वेव प्रोपोगेशन नहीं होगा वहाँ पर, दैट एनर्जी कैनॉट ट्रांसफ़र फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन द मीडियम. तो यहाँ पर कुछ और डिफ्रेंशिएट पॉइंट्स हम निकाल सकते हैं बिटवीन स्टेशनरी वेव एंड प्रोग्रेसिव. ओके, तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं. देखिए ये फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, प्रोग्रेसिव वेव एंड स्टेशनरी वेव. तो बोर्ड के अंदर इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्रोग्रेसिव वेव एंड स्टेशनरी वेव. 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है. ओके, और ये भी क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पर कि स्टेट द प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेशनरी वेव्स. तो यहाँ पर हमने टोटल कितने प्रॉपर्टीज लिखे, 9 प्रॉपर्टीज़. ओके, तो अगर 2 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है तो आपको 4 प्रॉपर्टीज़ लिखने हैं. अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है तो आपको यहाँ पर कितने लिखने होंगे, तो 3 मार्क्स के लिए आपको यहाँ पर 6 to 7 पॉइंट्स लिखने होंगे. तो ये पॉइंट्स यहाँ पर इस तरह से. नाउ डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्रोग्रेसिव वेव एंड स्टेशनरी वेव. ओके, देखिए प्रोग्रेसिव वेव ऑसिलेटरी डिस्टर्बेंस इन मीडियम गिव्स प्रोग्रेसिव वेव. जैसे हमें पता है कि वेव का मीनिंग क्या होता है, डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस इन द मीडियम ऑफ द पार्टिकल्स. ओके, उसी तरह से अगर ऑसिलेटरी डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस हो जाता है इन द मीडियम, देन इट गिव्स प्रोग्रेसिव वेव. प्रोग्रेसिव वेव्स आर ऑफ बोथ टाइप्स, ट्रांसवर्स वेव एज वेल एज लॉन्गिट्यूडिनल वेव. तो इस तरह से हमें प्रोग्रेसिव वेव मिलते हैं.
हाउ वी गेट स्टेशनरी वेव, यहाँ पर देखिए फर्स्ट पॉइंट, सुपरपोजिशन ऑफ टू आइडेंटिकल वेव्स इन अपोजिट डायरेक्शन गिव्स स्टेशनरी वेव। ये शॉर्टली यहाँ पर पॉइंट्स इस तरह से लिखे हैं स्टूडेंट, मतलब हमें पता है कि टू आइडेंटिकल वेव्स आर मूविंग अलॉन्ग द सेम पाथ बट इन अपोजिट डायरेक्शन, एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन गिव्स स्टेशनरी वेव। मतलब दो आइडेंटिकल वेव्स का मीनिंग क्लियर होगा ना, टू आइडेंटिकल वेव्स मतलब जिनका एम्पलीट्यूड सेम है, पीरियड फ्रीक्वेंसी भी सेम है, लेकिन डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन एग्जैक्टली अलॉन्ग द सेम लाइन इन अपोजिट डायरेक्शन होनी चाहिए। ओके, दैट गिव्स स्टेशनरी वेव। नाउ एम्पलीट्यूड ऑफ ईच पार्टिकल इज सेम इन प्रोग्रेसिव वेव। देखिए अगर एक प्रोग्रेसिव वेव होगी यहाँ पर, ओके देखिए सपोज यहाँ पर एक प्रोग्रेसिव वेव है, ट्रांसवर्स प्रोग्रेसिव वेव, ओके, तो ईच पार्टिकल ऑसिलेट विथ सेम एम्पलीट्यूड। हर एक पार्टिकल का एम्पलीट्यूड कैसे होता है स्टूडेंट, सेम होता है। ओके, एम्पलीट्यूड ऑफ ईच पार्टिकल इज सेम इन प्रोग्रेसिव वेव वेदर इट इज ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडिनल वेव। लेकिन अब यहाँ पर देखें कि एम्पलीट्यूड ऑफ ईच पार्टिकल इज नॉट सेम इन स्टेशनरी वेव। एम्पलीट्यूड 0 होता है जो पार्टिकल नोड्स पर हैं, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है उस पार्टिकल का जो पार्टिकल एंटी नोड पर है। मतलब फ्रॉम एंटी नोड टू नोड एम्पलीट्यूड डिक्रीजिंग है एंड फ्रॉम नोड टू एंटी नोड एम्पलीट्यूड इंक्रीजिंग होता है। तो इसलिए एम्पलीट्यूड ऑफ ईच पार्टिकल इज डिफरेंट इन स्टेशनरी वेव। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, प्रोग्रेसिव वेव में देखिए फेज ऑफ पार्टिकल्स इन सक्सेशन इज डिफरेंट। जैसे यहाँ पर हर एक पार्टिकल का फेज क्या होता है, डिफरेंट होता है स्टूडेंट, बिकॉज इन सक्सेशन इट प्रोपोगेट इन द मीडियम। तो जैसे वेव प्रोपोगेट होगी उस हिसाब से हर एक पार्टिकल का फेज ऑफ ऑसिलेशन चेंज हो जाएगा। लेकिन इन स्टेशनरी वेव देखिए, इन स्टेशनरी वेव पार्टिकल्स इन अ लूप आर इन द सेम फेज। जैसे देखिए ये एक लूप है तो हर एक पार्टिकल का फेज ऑफ ऑसिलेशन कैसे होगा, सेम होगा। मतलब ऑल पार्टिकल्स आर इन द मीन पोजिशन, ओके, एट इंस्टेंट। आफ्टर सम टाइम all particle reaches to the crust position. Again in the quarter of periodic time all particle moves to the mean position. मतलब हर एक पार्टिकल का ऑसिलेशन, फेज ऑफ ऑसिलेशन एग्जैक्टली सेम होता है। ओके, देखिए अगर एक पार्टिकल हम एंटी नोड पर कंसिडर करते हैं और दूसरा पार्टिकल यहाँ पर कंसिडर करते हैं तो सेम टाइम में दोनों पॉइंट्स यहाँ पर रीच होंगे, सेम टाइम दोनों पार्टिकल्स मीन पोजीशन पर रिटर्न आएंगे, फिर से ट्रफ पोजीशन पर जाएंगे, फिर से मीन पोजीशन। मतलब दोनों पार्टिकल का ऑसिलेशन सेम फेज में हो रहा है ना। तो इन स्टेशनरी वेव इन वन लूप ऑल पार्टिकल्स आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट देखिए प्रोग्रेसिव वेव के अंदर डेफिनेट वेलोसिटी प्रोपोगेट्स एनर्जी। मतलब डेफिनेट वेलोसिटी होती है और ये अलग से पॉइंट है यहाँ पर। ओके, तो प्रोग्रेसिव वेव प्रोड्यूस डेफिनेट वेलोसिटी बिकॉज देखिए साउंड वेव की वेलोसिटी कितनी होती है एट रूम टेम्परेचर, यस 340 मीटर पर सेकंड। सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव इन अ मीडियम इन एयर एट रूम टेम्परेचर। तो ट्रांसवर्स वेव हो या फिर लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स हो, ऑल प्रोग्रेसिव वेव हैज़ डेफिनेट वेलोसिटी विथ विच इट प्रोपोगेट्स थ्रू द मीडियम। लेकिन स्टेशनरी वेव की वेलोसिटी कैसी होती है, वेलोसिटी 0 बिकॉज स्टेशनरी वेव इज नॉट मूविंग फॉरवर्ड और बैकवर्ड, दे आर स्टैंडिंग वेयर इट इज़। ओके, तो वेलोसिटी ऑफ स्टेशनरी वेव 0 होती है स्टूडेंट। देन प्रोग्रेसिव वेव प्रोपोगेट्स एनर्जी because they transfer energy from one point to another point of the medium, so they propagate energy. Okay, but stationary wave is standing wave, it is localized where it is. Okay, so it does not propagate energy. Stationary waves energy propagate नहीं करते हैं। Okay, next point देखिए प्रोग्रेसिव वेव के अंदर मीडियम गेट डिवाइडेड इनटू अल्टरनेट क्रस्ट एंड ट्रफ और कॉम्प्रेशंस एंड रेयरफैक्शन। अगर ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस होती है इन द मीडियम तो द मीडियम इज अल्टरनेट डिवाइडेड इनटू क्रस्ट एंड ट्रफ। अगर लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स होती है फॉर एग्जांपल साउंड वेव्स तो वहाँ पर अल्टरनेट कॉम्प्रेशंस एंड रेयरफैक्शंस
तो कॉम्प्रेशन एंड रेरिफिकेशन अल्टरनेट मीडियम के अंदर क्रिएट होते हैं स्टूडेंट्स। नाउ व्हेन स्टेशनरी वेव इज प्रोड्यूस्ड, मीडियम इज गेट डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ लूप्स। देखिए इस तरह से नंबर ऑफ लूप्स यहाँ पर प्रोड्यूस हो जाते हैं ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ द स्टेशनरी वेव्स। मतलब मीडियम इज अल्टरनेट डिवाइडेड इनटू नोड एंटीनोड, नोड एंटीनोड, नोड एंटीनोड। ओके, तो इस तरह से लूप्स और नोड्स एंटीनोड्स यहाँ पर मीडियम के अंदर क्रिएट होते हैं। राइट स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर में हमने प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेशनरी वेव्स एंड सेकेंड एक पॉइंट यहाँ पर डिस्कस किया है, दैट इज डिस्टिंग्विश पॉइंट्स बिटवीन प्रोग्रेसिव वेव एंड स्टेशनरी वेव। ओके।